वंडरफुल प्रोजेक्ट यहाँ पे we'll start with this gentleman जिनके लिए कह सकता हूँ उनकी हर चीज एक्सेप्शनल होती है, हर चीज में परफेक्शन ढूंढते हैं. Give it up for Mr. भूषण कुमार, ladies and gentlemen. मिस मोनिशा अडवाणी, जिनसे कभी भी उनकी किसी फिल्म की ब्रीफ ले लो कि क्या होने वाला है तो वो पैशन ऐसा दिखता है, मतलब उनके एक्टर से भी एक कदम आगे दिखता है. Give it up for her, ladies and gentlemen. And as I call him, the most gutsy या gutsiest director. Give it up for Nikhil Advani साहब, ladies and gentlemen. Come on, make some noise. करता धरता ऑफ दिस फिल्म. मैं आपसे सबसे पहले आपसे ही शुरू करने वाला हूं. ये क्या मतलब, ये सबके दिमाग में आया होगा, तेरी गलियां सर, और वही एक विलन की थोड़ी सी फील, मतलब सर क्या होने वाला है, लाइक वही विलन ले लिया, वही हीरो है, और गाना भी है सर तेरी गलियां सर. That's just a small tribute to एक विलन which पहली बार सिद्धार्थ, रितेश और मैं एक साथ एक फिल्म में आए, thanks to Mohit, and that it was एक विलन and Galia was an iconic part of it. Right. So it's just a tribute from us to that memory. That's why it's part. Ritesh's character in the film जो किरदार है वो बहुत ही कमीना है. हाँ. तो वो ऐसे कुछ कमीने गाने गाता रहता है. अच्छा. So this is one of those songs. कमीनापन goes on from there to this place, right? Bhushan sir, this one's for you. There was a time जब producer साहब एक फिल्म कर रहे होते थे, actors 3 shifts में काम कर रहे होते थे. Now it's the other way around. Like आप 3 पिक्चरों में काम कर रहे होते हैं, actor एक shift. What is this, sir? Please tell us. So we have these partners like Nikhil and Dilap and everybody, and they take care of this creative things from us. So it's always means if you have team working for you and working with you as partners, so you can definitely do multiple projects. So yes, we are doing multiple projects, but we have great partners to work with. So that's the reason. Sir, और हमें भी मजा आ रहा है, like everybody is loving it. Monisha ma'am, this one's for you. 2 directors हैं, एक निखिल सर, एक इधर Zaveri sir. What do you have to say? कौन ज़्यादा अच्छा director है? एक वो मेरा माइलो. हाँ. ये जो है ये मुझे कुछ बुलाता है, ये मुझे हंसाता है. भूषण जो है वो भी मेरा छोटा भाई है, वो मुझे ऐसे देता है. बड़े अच्छे से, पैसे वाली बात में चमक देखनी चाहिए थी. निखिल सर, प्लीज टेल अस, लास्ट टाइम व्हेन वी वर हियर वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ब्लॉकबस्टर जो हो गई ब्लॉकबस्टर, और इतने सारा क्लेम मिला, क्रिटिकल बोलो या बॉक्स ऑफिस पे. अभी व्हेन यू सी हिम डायरेक्ट, तो बीच में कितनी बार मन किया कि यार ये वाला सीक्वेंस मैं कर लेता, कुछ ऐसा कर देता? एवरी शॉट, हर शॉट, हर सीक्वेंस, हर मोमेंट, हर गाना, हर एवरी शॉट. बट मतलब मैं ये भी जानता हूँ कि जो मिलाप करता है वो तो मैं कभी कर नहीं सकता. मिलाप एंड आई फाइट एवरी मॉर्निंग टू द लास्ट मिनट एवरी नाइट. Finally I will tell him, Milap, put the bloody phone down. I can't take it anymore. And he cries and I cry and we are shouting all the time. Yeah. So but the one thing I know is every time he gets something like this, Right. and if I can turn around and say that I would never make this, then I know he's got a blockbuster in his hands. It is indeed a blockbuster, ladies and gentlemen. Zordar taaliyan for this amazing crew. And I would want you to be honest because So I would like to do the honors of calling my cast one by one stage, because along with Bhushan ji, Monisha, Nikhil, Madhu, who's not here right now, she's on holiday. They are the ones who are responsible that this film happened. I would like to, being a gentleman, start with the ladies first. I would first like to call Rakul on stage. Rakul, can you please come? I am very grateful to Rakul for playing this special role in this film. It's a special thanks from us to her. For me, she's the Zora of Muqaddar Ka Sikandar. For me, she's the Chandramukhi of Devdas in this film. And I'm so happy that she agreed to do this special role for us. And I'm very, very grateful to her for that. Thank you so much. Thank you so much, Rakul. And शेर के मुंह में हाथ में डालूंगा. And after this, like to call Tara on stage. Zoya, Arzu के बाद Zoya. तारा को देख के एक ही ख्याल आता है, हाय मैं मर जाऊँ. उसके अलावा और कुछ कहने की जरूरत नहीं. शी इज ब्यूटीफुल, शी इज टैलेंटेड, शी इज डन अ ग्रेट जॉब इन द फिल्म.
and I think she will win everyone's hearts and break some hearts. इस अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो वो काफी दिल भी तोड़ेंगी इस फिल्म के साथ. I would like to call Raghu, वो मारेगा. वो मारेगा तो मर जाऊंगा, दोबारा जन्म लेने से डर जाऊंगा. Siddharth, thank you for agreeing to do such a massy role. Siddharth used to look at me on set and say, "क्या करवा रहा है?" And he still did it with conviction and power. Thank you, Siddharth. And last but really not the least, I call him Sethi. He's been part of my life since I think I was born almost. From my first film to now. तो फिल्म में कमीनेपन की हाइट है, लेकिन अच्छाई की हाइट में इनसे अच्छा कोई नहीं इस दुनिया में. रितेश देशमुख, my friend, my hero, my villain. So it's time for a quick photo op, right? We'll do this, yeah, without mics, and then we'll take this forward, right? मोबाइल अरे मोबाइल अरे और ऊपर हो गया काम करें. Can we have the mic, please? Thank you. ये भाई Rakul, we'll start with you. I have a question for you. Anyway, you know, you're so gorgeous, so talented. आप कुछ भी बोल लो, हम लोग वैसे ही मान लेते हैं. लेकिन अच्छी बात ये है, आज के बाद कोई भी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, कोई भी शेर के मुंह में मतलब नहीं डालेगा. थैंक्स सो मच. वो बताया नहीं तो ये लोग तो बस ऐसे ही हम दीवाने हैं. हाँ, पता है ऐसे ही चलते हैं. Oh shit, let's shake a leg. Okay, so how was it for you? You know, your experience. Quickly, we'll do this. जी, बताएं. Experience was very. Thank you so much, Milap, for all the amazing words. जो आरज़ू का character है, you know, when Milap different. I've grown up on a dose of 90s cinema, and उस type की फिल्में और इस type की dialogue बाजी आजकल नहीं देखी जाती है. So जब आरज़ू का character मुझे बताया गया, so I was like, why not? You know, I'll get to do something which is so elegant. You know, she has her own grace, and like he said, when he said मुकद्दर का सिकंदर रेखा, so I was like, done. And I'm so happy with you know, the role, and it's I remember one thing Milap told me, जो मैंने पहले भी कहा था, मेरी फिल्मों में हीरोज के भारी भरकम डायलॉग होते हैं, इस बार लड़के हीरोइन के भारी भरकम डायलॉग्स हो गए, and that you have seen, and there are many more in the film. So thank you so much, and the entire experience of Marjama has been very, very amazing, and I'd like to thank the entire team, you know, Nikhil, Monisha, Bhushan sir, and Sid, Tara, everyone. It's just been great. And Milap, Ritesh, I thought everyone. I mean, everyone, the entire team, and it's been great. Thank you so much for that. Tara, this one's for you. Please tell us, how was it for you? Because वो reaction आपका क्या आया था? Because all of us were like, हाँ, everything is going hunky dory, सही चल रहा है सब, and अचानक से there. You know, the first time I saw that, in any case, it's such an emotional and dramatic film and story. And in fact, when Milap actually narrated it to me for the first time, I'm in any case an emotional fool. I was sobbing at the office. And when I saw the trailer, I again was sobbing. I saw it just now, I got teary-eyed. So, I mean, it's great to be able to do something and to do a film like this. It's my second film, and I feel so grateful to the whole team, to Milap, to Nikhil, to Manisha, to everyone. Honestly, I just feel really blessed. I'm so excited. Thank you so much. Sid, this one's for you. Please बताइए. You know, with you, सबसे पहली बात, इतने fans कहीं हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं. Whenever it's your launch, पता नहीं कैसा मतलब क्या है. Awesomeness, see? They're like baby. Big kiss to all of them. हाय मैं मर जाऊँ, इनको देख के लगता मुझे हाय मैं मर जाऊँ. Right. फिलहाल हम मर गए हैं acting से, action से. So please tell us about this. ये कैसे, ये कहाँ से शुरुआत हुई और क्या हुआ? Thank you guys. Well, ये picture I think you know Milap believes in the cinema that we all grew up watching. कि एक हीरो की तरह चाहे एंट्री मारे या हीरो की तरह एक्शन करे या उसकी डायलॉग बाजी हो. So I personally grew up on cinema like this, and I think मुझे पहली बार I think इतने सालों में मौका मिला ऐसा हीरो प्ले करने का. तो मैंने जब नरेशन सुना और मिलाप जी की नरेशन सुने, इनकी डायलॉग सुने, तो that was the first thing that I got very excited कि यार करना चाहिए. I got inspired to become a hero,
watching big action heroes, you know, saying dialogues, you know, doing action, hopefully more like this. And this is what it is. This is, I think, this is the first time in my career I'm playing a hero, and we presented like one, all thanks to Milap and the whole team here on stage. So I'm pretty excited about Mar Jawa on 8th of November, guys. And with my partner in crime, Ritesh, who's slightly shorter this time, but equally powerful and double dose. So we're super excited to present you this film on 8th of November, guys. Mar Jawa. Well, सबसे फिल्मी डायरेक्टर का सबसे फिल्मी हीरो और अब सबसे फिल्मी विलन की बात करते हैं रितेश भाई। मतलब एवरीबडी यू नो इंडस्ट्री में कोई भी हो आपकी अच्छाई की बात करता है, ये वाला कहाँ छुपा के रखा था, ये जो कूट कूट के भरा हुआ है आपके अंदर? ये सिर्फ मेरे सामने आता है वैसे, है ना, ये साइड। हाँ, दूसरी बात है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि जब भी मिलाप सिद्धार्थ के लिए रोल लिखता है तो उसको लगता है उसके ऑपोजिट कोई कमी ना होना चाहिए। और सिद्धार्थ और मिलाप को पता है कि उसके जिंदगी में मुझसे बड़ा कमी ना कोई नहीं। राइट, अब हमको पता लग गया ये क्यों ऐसी कास्टिंग की गई। एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से हमारी इस कमाल की कास्ट के लिए। एंड नाउ इट्स ओवर टू ऑल यू वंडरफुल पीपल। जी, आप लोगों के सवाल जवाब लेंगे हम। First of all, congratulations to the team Mar Jawa. This is Simran Singh here from First Post. मेरा सवाल रितेश जी और मिलाप आपसे है। Before Sadak, we never knew that a killer can be so dangerous, and similarly, when it comes to vertically challenged people, we never knew that it can be so menacing. So, what was your thought behind writing this character, and what was your reaction, Ritesh sir, when you heard the script for the first time? Well, I had written the dialogues for Ek Villain where Ritesh had made the villain, and I knew if I have to approach him again for a negative role, it has to be something bigger than that. So then bigger तो नहीं मिला, लेकिन उससे छोटा कुछ मिल गया thought. So my whole character, the idea was that even though he's short in height, says he's got the arrogance and the persona of someone larger than life. You know, he's got a vicious, wicked sense of humor, and he's not physically strong, but mentally he's a mastermind. He's a criminal. He's very, very powerful. So that's why I thought of Ritesh, because I think Ritesh is an extraordinary actor. He has a great sense of comic timing, everybody knows, but he's a great actor in drama too, like Ek Villain too. So this role was a mix of the two things. There was humor, but same time there was menace. So that's why I went to him, approached him, and luckily he agreed to do it. Ritesh sir, what was your reaction? No, first of all, when Milap narrated the film to me, it's an interesting story. And उनका कि ये फिल्म है, ये रोल है, इंटरेस्टिंग विलन नया मैं करना चाहूँगा। और तब डायरेक्टर कोई और था, और वो सिलसिला चलता रहा। अब शूटिंग है, तब शूटिंग है, तो एक माइनर चेंज है उसमें। मतलब क्या है, अब डायरेक्टर मैं हूँ, मुझे बहुत बुरी तरह तुमने फंसाया, लेकिन मुझे रोल इतना पसंद है कि मैं फिल्म करने को तैयार हूँ। बट मुझे ये भी लगता है कि ये फिल्म मिलाप से बेहतर कोई नहीं डायरेक्ट कर पाता। दूसरी बात ये है कि जैसे मिलाप ने कहा कि वर्टिकली चैलेंज जब कोई इंसान होता है, देन देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट दे हैव टू डील विद। पर इसका किरदार ऐसा है कि जब आप फिल्म देखो तो आपको पता चलेगा उसके सारे जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उससे ऊपर उठकर इसे लगता ही नहीं कि ये 3 फुट का है। ये जब चलता है उसे लगता है कि सामने वाले सब इसके सामने 3 फुट के। तो दैट्स हिज एटीट्यूड एंड एरोगेंस। और उसके वजह से उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है, ड्यूअलिटी है, वो आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा। बट येस, आई लव द फैक्ट दैट ही डिडंट बॉदर कि वो उसकी हाइट कम है, वो उसका एक एरोगेंस है, उसका एक स्वैग है, और मिलाप ज़हरी के डायलॉग्स हैं, वो काफ़ी है फिल्म करने के लिए। निखिल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के ज़माने में जहाँ प्रोफेशनलिज्म की हम बात करते हैं, what do you want to say about this gesture जहाँ पे John Abraham has just given the dates of 8 November and he has pushed his film Pagal Pandi? What do you want to say about it? Well, I think that I think the partnership that John, myself, Bhushan ji, Amy, Jay, and TCs, as well as I mean we have to be very grateful for Milap. If Milap was not here, we would not have Satyamir Jayate, we would not have Patla House, and now Satyamir Jayate too. So I think that when Milap went and showed him the trailer, he said that it's fantastic. I think he spoke to everybody. He said it's great, and he said, but why are you feeling so upset? And he said, no, I'm not coming on
not solo. So I said, "ले solo. What can I do?" Because I think it's a great gesture. Very, and more, I think that the industry is figuring, is understanding that we are working now more and more as a unit, which I'm very happy for. It's been 25 years in the industry. I've been very happy that suddenly everybody is figuring out that, listen, Fridays we are giving hits and we are giving blockbusters. If we all come together and work together, the industry can become only prosper. It's fantastic. I'm very grateful for And I think, thank you for asking that question. I just want to thank John. John, thank you so much for showing grace towards us. Thank you. Thank you, John. Thank you, John. रितेश जी and सिद्धार्थ जी, आपके लेफ्ट में ये जानना चाहेंगे कि मरने के बाद दोबारा जन्म लेने में कितना बिलीव करते हैं आपको? भूषण जी, आपके पास सर, मैं रितेश हूँ और इस सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगा। हाँ, कोई खास वजह? सर, कल मैं मर के दोबारा जन्म ले रहा हूँ 600 साल बाद। सिद्धार्थ जी, पुनर्जन्म की बात करें, बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आई थिंक डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग चेन। मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं आ रहा है, वैसे मर जाओ में ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हम। जैसा कि हम कहा है, हम कल देखेंगे इनका जादू कि ये कैसे जन्म लेके वापस आते हैं हाउसफुल में। आप भी बिलीव करते हैं? कब रिलीज होगा? कल हाउसफुल का ट्रेलर लॉन्च है, उसमें रितेश उसकी जिक्र कर रहे हैं। आज इस जन्म की बात करते हैं। आज का जन्म बहुत इम्पोर्टेंट है सर। आज हम आज के जन्म की बात। रितेश, मेरा सवाल आपसे, जिस तरह का किरदार आप निभा रहे हैं वो वाकई बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव है, हालांकि 90 के दशक की याद दिलाता है और कहीं जहन में कमल हसन साहब भी आते हैं जब आप घुटनों के अंदर चल के आए। माइंड मी ऑफ कमल हसन साहब, देवगन अप्पू राजा। क्या आप कुछ इंस्पायर भी हुए हैं आप, या आपने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं? स्पेशली मैं कमल हसन साहब की बात करूँगा, जिस तरह उस वक्त में, जिस वक्त टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, उस वक्त वो किरदार निभाया गया था। और मिलन ने भी कहा कि आप नहीं बोलते थे कि यार ये क्या करवा रहा है भाई, लेकिन ही बिलीव इन द कैरेक्टर। तो क्या रेफरेंसेस लिए हैं आपने, और इट इज योर होमवर्क, यू नो? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि कमल हसन साहब इज बियॉन्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हो या ना हो, हिज परफॉर्मेंस, हिज ग्रेटनेस इज बियॉन्ड ऑल दैट। और इट्स जब हम ये कर रहे थे, ऑफ कोर्स इतने सारे एक्टर्स हैं जिनको देखकर लगता है कि इन्होंने कैसा किया होगा, पर फॉर्चुनेटली मुझ में जो खामियां हैं एज एन एक्टर, वहाँ टेक्नोलॉजी आकर हेल्प कर देती है। एंड आई एम ग्लैड जिस तरह मिला डायरेक्ट किया है, और इसके जो VFX है, वाकई फ्यूचर स्टूडियोज़ हो या इसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया है, आई थिंक दे हैव रियली टेकन ग्रेट केयर एंड मेड इट एक्सट्रीमली ईजी फॉर मी एज एन एक्टर। मुझे सिर्फ एक शॉट 5 बार करना पड़ता था, उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं है। और हमें शॉट बिना इनके करना पड़ता था, इमेजिन करते करते कि यहाँ पे इस आईलाइन में, और जब कभी-कभी एक्चुअल आईलाइन देखनी होती थी जब ये खड़े हुए हैं, ये हम लोग ऐसे शूट करते थे। नहीं सर, तो सर जब आप खड़े होते हैं और मेरी आईलाइन क्या होती है? सर नहीं, मैं मारूंगा, मर जाएगा। हाँ, और ये कैसा? नहीं, और मेरी आईलाइन क्या थी? कमीनेपन की हाइट से जाता है। हेलो, तो ऐसे तो हमने परफॉर्म किए पिक्चर में। देखो इतनी भारी भरकम लाइनें कहाँ देख के बोल रहा था। कोई शूटिंग देखने आया था, वो डर गए थे कि ये कैसी पिक्चर है। आई एम रिमाइंडेड ऑफ मिलाप्स अर्लियर फिल्म, प्लीज स्टॉप इट। फिल्म में बहुत सारे लोग बहुत सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं, आप कब डायलॉग्स बोल रहे हो? तो इन द फिल्म वी गेट टू सी यू हैविंग भारी भरकम डायलॉग्स। That's a great question, ma'am. So what really drew me to Marjava and to Zoya's character is the fact that she's actually mute. So in the film, I actually learned sign language for a couple of months before the film, and I feel really lucky to have been able to learn something as versatile as that. It helped me so much in the film, and I got so excited that I got to do something like that. It's something I'm actually going to use in my life wherever I travel and go to. But in film, she communicates in sign language, and I think that's wonderful communication between her character and Raghu's character. I think that's what makes them fall in love, and it's beautiful. So I can't wait to. Hello. This is Sakshi from E24. मेरा सवाल सिद्धार्थ से है। थोड़े टाइम पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि आप शायद अभी कोई और नई फिल्म साइन नहीं करेंगे, एंड यू विल एनालाइज। तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है?
बिल्कुल नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ भी एनालाइज नहीं किया इनके साथ मैं सीधा कूद गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर कोई एक्टर सोचता है पिक्चर साइन करने से पहले कि उसको उस पिक्चर में क्या पसंद आता है, उसको पिक्चर से क्या चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस फिल्म में it gives an oath to all the heroes and I have seen in Hindi movies and I got inspired कि क्या शॉट है, क्या एंट्री है, क्या वॉक है, क्या एक्शन है। तो वही एक्साइटमेंट से मैं इस पिक्चर में घुसा मिलाप के साथ, इस डायलॉग्स के साथ। And this team here has made sure that I've been presented in the best possible way. मेरा पहला association है भूषण सर के साथ, MA के साथ, and I've had a wonderful time with this whole team. And we're very excited that this is not the end, and then we'll have many more films. Hello, this is Sunay here from Bollywood Crazies. My question to Milap sir is that sir ट्रेलर तो पैसा वसूल है, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ पे एक सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे रितेश सर एक कुर्सी फेंकते हैं और सामने आईने पे 10 चेहरे दिखते हैं। That was a brilliant piece of cinema making. सर ये सुनने के लिए मिलाप के कान तरस गए थे। उसके जिंदगी में किसी ने इसको नहीं कहा कि ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा। ये सुन के निकल गिर गया इसको। मैं Especially in Trandami, मैं टर्न करके जा रहा हूँ घर। There is also a dialogue called कमीनेपन की हद 3 को। तो ये सब चीजें, ये सब डायलॉग बाजी इतनी कमाल की लगती है, मतलब एक पैसा वसूल सिनेमा लग रहा है फिलहाल मुझे। और यहाँ पे मेरा बर्थडे भी आता है 8 नवंबर को, तो मैं तो देखने वाला हूँ कल। लेकिन आप लोग से सवाल कल नहीं बाबा, 8 नवंबर। तो मेरा ये सवाल है मिलाप सर से, इस तरह का जो सिनेमा है, जो मसाला सिनेमा, जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक को पसंद आएगा, कितना डिफिकल्ट होता है बनाना? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपको इतना अच्छा लगा वो सीन कि मुझे क्या है, दोबारा पूछना सवाल। तारीफ की आदत नहीं है, बिकॉज सबसे सबकी शिकायत होती है कि मेरा जो सिनेमा है वो बहुत ज्यादा मासी है और मसाला है और फिल्मी है। तो आई एम वेरी हैप्पी, आपको बहुत अच्छा, वो बहुत ही एवरीथिंग लुकिंग दैट साइड, नॉट दिस साइड। पर आपने जो बात कही है ऑनेस्टली, ये बात मुझे निखिल ने भी कुछ दिन पहले कही कि ये जो एक सेक्शन जो तूने आईना तोड़ के जो 10 रितेश के सर नजर आते एज अ सिंबोलिज्म ऑफ रावण, so he himself told me that's one of the only aesthetic shots you've taken in this whole film. So, and then I said one more thing. What? Close out क्यों नहीं लिया? और उस सीन की खास बात थी कि मैं शॉट देने जा रहा था, मैं वहाँ रुका था और मैं कैमरा के सामने आया, कैमरा रोल हुआ और मिलाप ने कहा कट, दौड़ के आया, मेरे पास एक लाइन आई है, लाइन बोल दो। मैंने कौन सी? बोला लाइन बोल दे। आप बोलो। तो बोलता कि एक रावण 10 सर, एक विष्णु 10 का असर। हेलो मेरा नाम आरती सक्सेना है, यहाँ पे आरती जी, मेरा रितेश जी से मेरा सवाल है कि मतलब ये कैरेक्टर, ये हम लोग जब आए ना तो हम लोग लगा मर जाना, मतलब होगी एक पिक्चर, लेकिन जब हम लोगों ने देखा सही है, पिक्चर ही है, सही बोला आपने, एक पिक्चर ही है। मतलब जैसे हमेशा एक ट्रेलर लॉन्च में आते हैं तो हम लोग ऐसे नॉर्मली आते हैं, लेकिन देखने के बाद हम लोग झटके में आते हैं। थैंक यू। जो इन्होंने लास्ट में गोली चलाई, आपके जो शॉट्स थे, तो मुझे ये पूछना था कि मतलब आपका जो विलन वाला रोल है, इसके लिए आप गाना गा रहे थे कि ये घड़ी आ गई, इतना अच्छा रोल मुझे मिल गया इतने टाइम के बाद, मतलब लाइक इसमें बहुत अच्छा आपका रोल है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मिलाप का और मेरा एसोसिएशन काफी सालों से है। मेरे करियर में जब भी कोई बदलाव हुआ है तो मिलाप की लिखावट से हुआ है। पहले चाहे वो मेरी पहली कमर्शियल हिट फिल्म मस्ती थी जो मिलाप ने लिखी थी। जिंदगी में हमेशा ये सोचता था कि कभी तो विलन बनूं, एक रोल होता है, हर तरह की ख्वाहिश होती है, वो एक विलन में मिलाप ने लिखा था। और उसके बाद अभी वर्टिकली चैलेंज बनने का भी मौका बहुत कम लोगों के नसीब फॉर दैट। और लगे हाथों मैं ये भी कहना चाहूँगा, इट वॉज ग्रेट एसोसिएटिंग विद MA, मोनिशा, मधु एंड निखिल। दे हैव बीन great producers. इतने साल काम करने के बाद then you work with a new team, you feel re-energized, so that's there. And it's my first association as producer with Bhushan ji, and he has been a fantastic producer, and I wish him and all his endeavors all the best and much. The role हो सकता है in future. Like आपको कोई विलन ध्यान में है जिसको देख के आपको लगा कि ऐसा मैं भी बन जाऊंगा? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मेरी वैसी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं उनकी तरह बनूं, क्योंकि
जो भी मुझे विलन्स अच्छे लगे, दे हैव बीन फैंटास्टिक, दे हैव बीन ग्रेट, और आई एम नॉट दैट कैलिबर फॉर एन एक्टर टू रीच देयर, बट विद इन माई स्पेस इफ यू कैन क्रिएट समथिंग दैट पीपल से अरे इसने अच्छा काम किया है, मेरे लिए वही काफ़ी है। Hello, hi. This is Siddhi from Deccan Chronicle. Firstly, the trailer looks really amazing. My question is for you, Siddharth and Ritesh. After watching the trailer, I could really feel that I'm reminded of the characters Ram and Ravan. So, is Marjawa a contemporary take on Indian mythology? सवाल हमसे पूछा लेकिन जवाब से मिला भी दे सकते हैं। बिल्कुल। ये रघु और विष्णु के बीच। Just because आप लोग कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, so is it actually a take on Indian mythology even after seeing the? Well, if you talk about two different extremes, definitely there is a take on one being skewed to slightly positive, one being skewed to a slightly more negative character. But ये सब आप रेफरेंस की बात कर रहे हैं, I think क्योंकि रावण है यहाँ पे, और वो उन्होंने जो लिखा है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है पिक्चर में, रावण को लेकर एक जो कल्चर है, एक प्रथा है जो होती है, उनकी भारी भरकम डायलॉग्स भी हैं उसके ऊपर। तो आई थिंक मोर देन अस सेइंग एनीथिंग एल्स अबाउट द फिल्म, आई थिंक इट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। और बाकी ये बताएंगे कि आप रामायण से इंस्पायर हुए? वेल, मेरा मानना है हर किसी की जिंदगी में कोई राम है, कोई रावण है, you know, there is good and evil in everyone. So in this film, that is a subtext of good versus evil. Raghu, his name in the film actually is one of the names of Lord Ram. So it has happened organically. It's not a mythological tale. The film is not that. The film is not a mythological tale. It is a masala entertainer. But yes, there is this subtext of good or evil. Dasera plays an important part in the film. Ravan. You can play that 90s grace और ये सब, और मैंने फिर जाकर वापस मूवी देखी just to kind of understand what फिल्मों की रेफरेंस दी थी मिलाप ने मुझे, but yeah, I'm just happy that I got to play it. Hello, Rahul. Take two last questions, right? Like हाँ, योर टर्न। राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल चारों स्टार कास्ट से पहले सिद्धार्थ से शुरू करते हैं। ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये आपकी सारी फिल्मों सबसे टॉप पे ये बेस्ट फिल्म बन जाएगी आपकी। तो बात करते हैं, जब मरजावा फीलिंग तभी आती है जब कोई सिचुएशन होता है, ऐसा कुछ नौबत ऐसी आती है। एक तो सलमान सर ने किक में बताया था, मैंने यार ना मिले तो मर जावा। तो आपकी नज़र में आपकी कब कब ऐसे सिचुएशन आए थे मरजावा वाले? हाँ, कि मेरा अभी हुआ, फैंस को देखता हूँ हमेशा मुझे लगता है हाय मैं मर जाऊँ। इन सब का प्यार ऐसा है, जिस तरफ से ये लोग आते हैं हमेशा प्यार दिखाते हैं। अब कोई भी एक्टर जब मिलता है अपने फैन से, इनसे पहले हुए ना नीचे, तो यू ऑलवेज फील ब्लेस्ड। एंड जैसे हमारे नॉर्थ में बलाएं लेते हैं ऐसे हाय मैं मर जावा, और यहाँ पे मिलाप सर ने उसको ट्विस्ट दिया है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। बट वी आर होपिंग कि इस पिक्चर के बाद मर जावा के अलग अलग भी मीनिंग्स आएंगे जो चाहते हैं हमारे मिलाप सर। क्योंकि कुछ कमीने दोस्त भी होता है, अगर सीरियसली आपको बोल दे ठीक है मर जा तो ठीक है मर जा, क्या अगर कुछ कमीने दोस्त भी होते हैं, अगर आपने बोला हाय मर जावा, हाँ। तो सामने से अगर रिप्लाई करे कमीने दोस्त हाँ ठीक है मर जा, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कहेंगे घर जाओ। मैं मारूंगा मर जाएगा। रितेश हेलो रितेश रवि सर, रितेश जैसे कि आप भी जानते हैं कि अगर कुछ सिमिलर चीजें होती, चाहे रोल हो, कैरेक्टर हो या सीन हो, तो लोग कंपैरिजन करने लगते हैं। तो उस लास्ट ईयर एक फिल्म आई थी जीरो, शाहरुख खान सर की फिल्म आई थी, तो वो फिल्म उतनी पसंद लोगों ने किया था, फिर भी उतनी चली नहीं थी। तो क्या कंपटीशन लगता है आपको, क्योंकि आप भी एक डॉफ का किरदार कर रहे हैं? सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली मैंने फिल्म देखी नहीं है, बट मैं जब शाहरुख साहब के सेट पे गया था तो मैंने अराउंड 45 मिनट्स उन्होंने मुझे बैठ कर दिखाया था कि वो किस तरह शूट कर रहे हैं, किस तरह उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं। तो लाइव मैंने उनको वो परफॉर्म करते हुए देखा था, एंड ही वॉज मैग्निफिसेंट। आई थॉट व्हाट दे हैड डन वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तो उनके जैसा, उनकी तरह नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने वो कोशिश ही करना छोड़ दिया। और मेरे लिमिटेशन में मुझे जितना आता है, जितना मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा, उतना मैंने किया। अभी आप देखिए, आपको पसंद आया तो ग्रेट। रकुल, हमेशा आज भी आप बहुत बेहद खूबसूरत लग रहे हो आप। तो ये मर जावा फिल्म आपने क्या सोच के हाँ बोला, मतलब कुछ ऐसा लगा आपको क्योंकि छोटा सा किरदार है? सोचती तो हाँ नहीं बोलती। बस मिलाप ने थोड़ा
थोड़े से डायलॉग सुना दिए और बस मैं उसमें मैंने हाँ कर दी। पर जैसे कि मैंने आपको कहा, बात लेंथ की नहीं होती, जैसे आपने कहा कि छोटा है, बात धमाके की होती है, कभी कभी छोटा भी धमाका दे जाता है। सो आई थिंक काफ़ी पावरफुल रोल है। एंड जैसा कि इन्होंने कहा मुकद्दर का सिकंदर, अब उसमें अभी तक आप रेखा जी के रोल की बात कर रहे हैं, इंद्रमुखी देवदास की बात कर रहे हैं, तो आई थिंक मुझे ये रोल बहुत एक्साइट किया। अगेन मैं कह रही हूँ बिकॉज ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, बिकॉज ऑफ द वे आरजू का कैरेक्टर लिखा गया है, उसकी अदाएँ, उसकी शायरी, काफ़ी शायरी में बात करती है। वो जब आप आगे देखेंगे मूवी तो आपको पता चलेगा। सो फॉर मी इट वाज जस्ट गेटिंग अ चांस टू प्ले समथिंग व्हिच आई डोंट थिंक आई कुड हैव गॉटन अ चांस टू प्ले अदरवाइज। रवि सर। भूषण सर, हाय, रवि फ्रॉम एजी न्यूज़। भूषण सर, टी सीरीज इस वक्त इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना रहा है, बॉलीवुड में जो 2-3 स्टूडियोज हैं उससे भी कहीं बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े सितारों के साथ काम कर रहे हैं आप। हाल ही में खबर आई थी कि वांगा रेड्डी जो कबीर सिंह जिन्होंने बनाई थी मॉन्स्टर एक फिल्म थी बहुत बड़ी, रणवीर सिंह अब काम करने जा रहे हैं वांगा रेड्डी के साथ। क्या कुछ इसके बारे में कंफर्मेशन दे सकते हैं, क्या कुछ बता सकते हैं? अभी वी आर डूइंग द फिल्म, लेकिन अभी कोई एक्टर फाइनल नहीं है, ही इज स्टिल राइटिंग द स्क्रिप्ट। तो जब रेडी हो जाएगी तो ये ऑफिशियली अनाउंस अप्रोच किया गया सर? नहीं, अभी किसी को अप्रोच नहीं किया। ओके सर। One last question we're taking. Ji. Komal here from Indian Express. Ritesh, my question is for you. While you totally look into character in the trailer that we watched, why this question can be answered by the director and with you also. When we write characters keeping maybe a dwarf in mind, why do we not have a dwarf actor do this? Because we always lack some kind of representation when it comes to dwarf actor or a fat actor or an old actor. When the characters are like this, why don't we get actors accordingly? Ma'am, I respect your viewpoint, but as an actor, when someone has approached me with the offer and the role, I think my job is only to see whether I will be able to pull it off, and if the director and the producer have the confidence that I will be able to pull it off and do justice to what's been offered to me. As an actor, I am ready to play anything, be it a vertically challenged person, old person, young person. I have played a woman also. So, हाँ सर, वो भी है। और बहुत सारे पिक्चरों में मेरी हालत कुत्ते जैसी भी हुई, तो I have played everything. और so I'm as an actor I'm open, but as a writer and producer, I'm sure Milap will answer that. Well, while I feel your question is valid, if Mr. Anupam Kher, who's such a great actor, had not played a character older than his years in Saransh so many years back, you never have had Anupam Kher ji. Similarly, there are so many great actors who play different roles. Ayushmann in Dreamgirl a few weeks back played, a person they all think he's a girl. So I just think that eventually, while I feel yes, everyone deserves a right and should get an opportunity, to act and to perform, it's also equally fair that actors get chances to experiment. For Ritesh to be able to play a dwarf, for someone else to be able to play someone older, it's or someone to be like, even Sand Ki Aankh trailer came out a few days back. I loved the trailer. I think it's superb the way Taapsee and Bhumi have done the parts, and I think it's great that actors are taking challenges and coming out of their comfort zone, and writers are writing, directors are agreeing, producers are agreeing to do such things. So I just guess it's a matter of who you think fits the role. I knew I needed someone like him because of the wickedness and the humor and the performance. That's why I approached him for it. Yeah, my question is to Gigi, please continue. Yeah, my question is to Monisha ma'am. The last two films here. The last two films you produced and now Marjava. So what are the parameters which you have in your mind before you say yes to produce a film? What goes in your mind? A good story. Okay. No, I'm just going to link it to what Komal asked right now, which is when Milap was narrating the story of Marjava, yes, there was, he started by telling that the villain is vertically challenged. But after, I think, the first 15-20 minutes of the narration, I forgot about all disabilities. I forgot that the character Zoya is mute. I just got engrossed in the character itself. And very honestly, I couldn't see anybody besides Ritesh playing that role. And I couldn't see anybody else, we needed somebody who was beautiful and pretty, and she had not yet come to the
business, but we knew she should visit our office sometimes. And both Milap and I, she had come over to my house for a dinner, and I said to him, I said, this girl is so beautiful, now she deserves. So very honestly, very often you get so, and as a producer, yes, we do keep commerce in mind, and I'm fortunate that I've got partners and T-Series with us who, you know, keep that element of it and allow us, the film, Nikhil, Madhu and myself, to actually find a story where we see people we believe in, and then work very hard at ensuring that we put the film together the way we heard it and the way it comes across. Thank you so much, ma'am. And it's time for the final photo as we have to wrap up because the actors have to leave here. And I'm so sorry, guys. It's time for the final photo op. Would like to invite on stage Mr. Neeraj Kalyan, ladies and gentlemen. It won't have been possible without his support. T-Series, Senior VP Films, ladies and gentlemen. And thank you so much for being so cool, so patient. Thank you so much, guys. संजय ओ मिश्रा जी यार मैं अरे यार फ्रेम गया हो गया एक मिनट कैमरा अरे बैठ जाओ ओ मिश्रा जी मिश्रा मोबाइल देखो भाई ओ मिश्रा जी मैडम
मोबाइल हेलो मोबाइल चलो हो गया चलो यार लो यार वायर भाई थैंक यू निकाल थोड़े बाहर निकालना पड़ा अरे सबका वायर साथ ही the wonderful people who backed this wonderful project यहाँ पे we'll start with this gentleman जिनके लिए कह सकता हूँ उनकी हर चीज exceptional होती है, हर चीज में perfection ढूंढते हैं. Give it up for Mr. Bhushan Kumar, ladies and gentlemen. मिस मोनिशा अडवाणी, जिनसे कभी भी उनकी किसी फिल्म की ब्रीफ ले लो कि क्या होने वाला है तो वो पैशन ऐसा दिखता है, मतलब उनके एक्टर से भी एक कदम आगे दिखता है. Give it up for her, ladies and gentlemen. And as I call him, the most gutsy या gutsiest director. Give it up for Nikhil Advani साहब, ladies and gentlemen. Come on, make some noise. The करता धरता of this film. मैं आपसे सबसे पहले आपसे ही शुरू करने वाला हूँ. क्या मतलब ये सबके दिमाग में आया होगा, तेरी गलियां सर, और वही एक विलन की थोड़ी सी फील, मतलब सर क्या होने वाला है, लाइक वही विलन ले लिया, वही हीरो है और गाना भी है सर तेरी गलियां सर. That's just a small tribute to एक विलन which पहली बार सिद्धार्थ, रितेश और मैं एक साथ एक फिल्म में आए, thanks to Mohit and that it was एक विलन and Galia was an iconic part of it. Right. So it's just a tribute from us to that memory. That's why it's part. Ritesh's character in the film जो किरदार है वो बहुत ही कमीना है, तो वो ऐसे कुछ कमीने गाने गाता रहता है. अच्छा, तो this is one of those songs. कमीनापन goes on from there to this place, right? Bhushan sir, this one's for you. There was a time जब producer साहब एक फिल्म कर रहे होते थे, actors 3 shifts में काम कर रहे होते थे. Now it's the other way around. Like आप 3 पिक्चरों में काम कर रहे होते हैं, actor एक shift. What is this, sir? Please tell us. So we have these partners like Nikhil and Vilap and everybody, and they take care of this creative things from us. So it's always means if you have team working for you and working with you as partners, so you can definitely do multiple projects. So yes, we are doing multiple projects, but we have great partners to work with. So that's the reason. और हमें भी मजा आ रहा है, like everybody is loving it. Monisha ma'am, this one's for you. 2 directors हैं, एक निखिल सर, एक इधर Zaveri sir. What do you have to say? कौन ज़्यादा अच्छा director है? एक है मेरा माइलो. हाँ. ये जो है, ये मुझे खिलाता है, ये मुझे हंसाता है. भूषण जो है वो भी मेरा छोटा भाई है, वो मुझे पैसे देता है. बड़े अच्छे से पैसे वाली बात में चमक देखनी चाहिए थी. निखिल सर, प्लीज टेल अस, लास्ट टाइम व्हेन वी वर हियर वी वर टॉकिंग अबाउट दिस ब्लॉकबस्टर जो हो गई ब्लॉकबस्टर और इतने सारा तकलीफ मिला क्रिटिकल बोलो या बॉक्स ऑफिस पे. अभी व्हेन यू सी हिम डायरेक्ट, तो बीच में कितनी बार मन किया कि यार ये वाला सीक्वेंस मैं कर लेता, कुछ ऐसा कर देता? एवरी शॉट, हर शॉट, हर सीक्वेंस, हर मोमेंट, हर गाना, हर एवरी शॉट. बट मतलब मैं ये भी जानता हूँ कि जो मिलाप करता है वो तो मैं कभी करने से मिलाप एंड आई फाइट एवरी मॉर्निंग टू द लास्ट मिनट एवरी नाइट. फाइनली आई विल टेल मिलाप पुट द ब्लडी फोन डाउन, I can't take it anymore. And he cries and I cry and we are shouting all the time. Yeah, so but the one thing I know is every time he gets something like this, right. And if I can turn around and say that I would never make this, then I know he's got a blockbuster. It is indeed a blockbuster, ladies and gentlemen. Zordar talia for this amazing crew. And I would want you to be honest because so I would like to do the honors of calling my cast one by one on stage because along with Bhushan ji, Monisha, Nikhil, Madhu, who's not here right now, she's on holiday. They are the ones who are responsible that this film happened. I would like to, being a gentleman, start with the ladies first. I would first like to call Rakul on stage. Rakul, can you please come? I am very grateful to Rakul for playing this special role in this film. It's a special thanks from us to her.
For me, she's the Zora of Muqaddar Ka Sikandar. For me, she's the Chandramukhi of Devdas in this film, and I'm so happy that she agreed to do this special role for us, and I'm very, very grateful to her for that. Thank you so much, Rakul. और शेर के मुंह में हाथ में डालूंगा. I'd after this like to call Tara on stage, Zoya, Arzu के बाद Zoya. तारा को देख के एक ही ख्याल आता है, हाय मैं मर जाऊँ. उसके अलावा और कुछ कहने की जरूरत नहीं. शी इज ब्यूटीफुल, शी इज टैलेंटेड, शी इज डन अ ग्रेट जॉब इन द फिल्म, एंड आई थिंक शी विल विन एवरीवन्स हार्ट्स एंड ब्रेक सम हार्ट्स. जैसे अगर आपने ट्रेलर देखा हो तो वो काफी दिल भी तोड़ेंगी इस फिल्म के साथ. आई वुड लाइक टू कॉल रघु, वो मारेगा, वो मारेगा तो मर जाऊंगा, दोबारा जन्म लेने से डर जाऊंगा. Siddharth, thank you for agreeing to do such a massy role. Siddharth used to look at me on set and say, "क्या करवा रहा है?" And he still did it with conviction and power. Thank you, Siddharth. And last but really not the least, I call him Sethi. He's been part of my life since I think I was born almost. From my first film to now. तो फिल्म में कमीनेपन की हाइट है, लेकिन अच्छाई की हाइट में इनसे अच्छा कोई नहीं इस दुनिया में. रितेश देशमुख, माय फ्रेंड, माय हीरो, माय विलेन. So it's time for a quick photo op, right? We'll do this, yeah, without mics. And then we'll take this forward, right? Mobile. Mobile. Uncle. Can we have the mic, please? Thank you. Rakul, we'll start with you. I have a question for you. Anyway, you know, you're so gorgeous, so talented. आप कुछ भी बोल लो, हम लोग वैसे ही मान लेते हैं. लेकिन अच्छी बात ये है, आज के बाद कोई भी, जितने लोग यहाँ बैठे ना, कोई भी शेर के मुंह में मतलब नहीं डालेगा. Thanks so much. वो बताया नहीं तो ये लोग तो बस ऐसे ही हम दीवाने हैं. हाँ, बताया ऐसे चलते हैं. Oh shit, let's shake a leg. Okay, so how was it for you? You know, your experience quickly. We'll do this. जी, बताएं. Experience was very. Thank you so much, Milap, for all the amazing words. जो आरजू का character है, you know, when Milap different. I've grown up on a dose of 90s cinema, and उस टाइप की फिल्में और इस टाइप की डायलॉग बाजी आजकल नहीं देखी जाती है. So जब आरजू का character मुझे बताया गया, so I was like, why not? You know, I'll get to do something which is so elegant. You know, she has her own grace, and like he said, when he said मुकद्दर का सिकंदर देखा, तो I was like, done. And I'm so happy with the role, and it's I remember one thing Milap told me, जो मैंने पहले भी कहा था, मेरी फिल्मों में हीरोज के भारी भरकम डायलॉग होते हैं, इस बार लड़की हीरोइन के भारी भरकम डायलॉग्स होंगे, and that you have seen, and there are many more in the film. So thank you so much, and the entire experience of Marjava has been very, very amazing, and I'd like to thank the entire team, you know, Nikhil, Monisha, Bhushan sir, and Sid, Tara, it's just been great, and Milap, Ritesh, I thought everyone, I mean, everyone, the entire team, and it's been great. Thank you so much for that. Tara, this one's for you. Please tell us how was it for you? Because वो reaction आपका क्या आया था? Because all of us were like, हाँ, everything is going hunky dory, सही चल रहा है सब, and अचानक से damn. You know, the first time I saw that, in any case, it's such an emotional and dramatic film and story. And in fact, when Milap actually narrated it to me for the first time, and I'm in any case an emotional fool, I was sobbing at the office. And when I saw the trailer, I again was sobbing. I saw it just now, I got teary-eyed. So, I mean, it's great to be able to do something and to do a film like this. It's my second film, and I feel so grateful to the whole team, to Milap, to Nikhil, to Manisha, to everyone.
honestly, I just feel really blessed and so excited. Thank you so much. Sid, this one's for you. Please बताइए. You know, with you, सबसे पहली बात, इतने fans कहीं हम लोग को देखने को नहीं मिलते हैं. Whenever it's your launch, पता नहीं कैसा मतलब क्या है. It's awesomeness. See, they like baby. Big kiss to all of them. हाय मैं मर जाऊँ. इनको देख के लगता मुझे हाय मैं मर जाऊँ. Right. फिलहाल हम मर गए हैं acting से, action से. So please tell us about this. ये कैसे, ये कहाँ से शुरुआत हुई, अब क्या हुआ? Thank you guys. Well, ये picture I think you know Milap believes in the cinema that we all grew up watching. कि एक हीरो की तरह चाहे एंट्री मारे या हीरो की तरह एक्शन करे या उसकी डायलॉग बाजी हो. So I personally grew up on cinema like this, and I think मुझे पहली बार I think इतने सालों में मौका मिला है ऐसा हीरो प्ले करने का. तो मैंने जब नरेशन सुना और मिलाप जी की नरेशन सुने, इनकी डायलॉग सुने, तो that was the first thing that I got very excited कि यार करना चाहिए. I got inspired to become a hero, watching big action heroes, you know, saying dialogues, you know, doing action, hopefully more like this. And this is what it is. This is, I think, this is the first time in my career I'm playing a hero and being presented like one, all thanks to Milap and the whole team here on stage. So I'm pretty excited about Mar Java on the 8th of November, guys, and with my partner in crime, Ritesh, who's slightly shorter this time, but equally powerful and double dose. So we're super excited to present you this film on 8th of November, guys. Mar Java. Well, सबसे फिल्मी डायरेक्टर का सबसे फिल्मी हीरो और अब सबसे फिल्मी विलन की बात करते हैं. रितेश भाई, मतलब एवरीबडी यू नो इंडस्ट्री में कोई भी वो आपकी अच्छाई की बात करता है. ये वाला कहाँ छुपा के रखा था, ये जो कूट के भरा हुआ है आपके अंदर? ये सिर्फ मेरे सामने आता है वैसे, है ना? ये साइड. हाँ, दूसरी बात है. नहीं, बिल्कुल. मुझे लगता है कि जब भी मिलाप सिद्धार्थ के लिए रोल लिखता है तो उसको लगता है उसके ऑपोजिट कोई कमी ना होना चाहिए. और सिद्धार्थ और मिलाप को पता है कि उसके जिंदगी में मुझसे बड़ा कमी ना कोई है. राइट, अब हमको पता लग गया ये क्यों ऐसी कास्टिंग की गई. एक बार जोरदार तालियां हो जाए फिर से हमारी इस कमाल की कास्ट के लिए. एंड नाउ इट्स ओवर टू ऑल यू वंडरफुल पीपल. जी, आप लोगों के सवाल जवाब लेंगे हम. First of all, congratulations to the team Marjama. This is Simran Singh here from First Post. मेरा सवाल रितेश जी और मिलाप आपसे है. Before Sadak, we never knew that Kinder can be so dangerous, and similarly, when it comes to vertically challenged people, we never knew that it can be so menacing. So, what was your thought behind writing this character, and what was your reaction, Ritesh sir, when you heard the script for the first time? Well, I had written the dialogues for Ek Villain where Ritesh had played the villain. And I knew if I have to approach him again for a negative role, it has to be something bigger than that. So then bigger तो नहीं मिला, लेकिन उससे छोटा कुछ मिल गया. Thought. So my whole character, the idea was that even though he's short in height, so he's got the arrogance and the persona of someone larger than life. You know, he's got a vicious, wicked sense of humor, and he's not physically strong, but mentally he's a mastermind, he's a criminal, he's very, very powerful. So that's why I thought of Ritesh, because I think Ritesh is an extraordinary actor. He has a great sense of comic timing, everybody knows, but he's a great actor in drama too, like Equal and Proof. So this role was a mix of the two things. There was humor, but same time there was menace. So that's why I went to him, approached him, and luckily he agreed to do it. Ritesh sir, what was your reaction? No, first of all, when Milap narrated the film to me, it's an interesting story. And उनका ये फिल्म है, ये रोल है, it's an interesting विलन नया मैं करना चाहूँगा. और तब डायरेक्टर कोई और था, और वो सिलसिला चलता रहा. अब शूटिंग है, तब शूटिंग है. तो एक माइनर चेंज है उसमें. मतलब क्या है, अब डायरेक्टर मैं हूँ. मुझे बहुत बुरी तरह तुमने फंसाया, लेकिन मुझे रोल इतना पसंद है कि मैं फिल्म करने को तैयार हूँ. बट मुझे ये भी लगता है कि ये फिल्म मिलाप से बेहतर कोई भी डायरेक्ट कर पाता. दूसरी बात ये है कि जैसे मिलाप ने कहा कि वर्टिकली चैलेंज जब कोई इंसान होता है, देन देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज दैट दे हैव टू डील विद. पर इसका किरदार ऐसा है कि जब आप फिल्म देखो तो आपको पता चलेगा उसके सारे जो भी इनसिक्योरिटीज़ हैं उससे ऊपर उठकर इसे लगता ही नहीं कि ये 3 फुट का है. ये जब चलता है उसे लगता है कि सामने वाले सब इसके सामने 3 फुट का. तो दैट्स हिज एटीट्यूड एंड एरोगेंस. और उसके वजह से उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है, क्रूरटी है, वो आप जब फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा. बट येस, आई लव द फैक्ट दैट
he didn't bother कि वो उसकी हाइट कम है, वो उसका एक एरोगेंस है, उसका एक स्वैग है, और मिलाप ज़वेरी के डायलॉग्स हैं, वो काफ़ी है फिल्म करने के लिए। निखिल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के ज़माने में जहाँ प्रोफेशनलिज्म की हम बात करते हैं, what do you want to say about this gesture जहाँ पे John Abraham has just given the dates of 8 November and he has pushed his film Pagal Pandi. What do you want to say about it? Well, I think that I think the partnership that John, myself, Bhushanji, MA, JA, and T-Series, as well as I mean we have to be very grateful for Milap. If Milap was not here, we would not have Satyajit Jayate, we would not have Atla House, and now Satyajit Jayate too. So I think that when Milap, when I showed him the trailer, he said that it was fantastic. I think he spoke to everybody. He said it's great. And he said, but why is he feeling so upset? And he said, no, I'm not coming. I'm not solo. So he said, let solo. What can I do? So I think it's a great gesture. And more, I think that the industry is figuring, is understanding that we are working now more and more as a unit, which I'm very happy for. It's been 25 years in the industry. I've been very happy that suddenly everybody is figuring out that, listen, Fridays we are giving hits and we are giving blockbusters. If we all come together and work together, the industry can become only prosper. It's fantastic. I'm very grateful for that. And I think, thank you for asking that question. I just want to thank John. John, thank you so much for showing dance towards us. Thank you. Thank you, John. Thank you, John. रितेश जी and सिद्धार्थ जी, आपके लेफ्ट में ये जानना चाहेंगे कि मरने के बाद दोबारा जन्म लेने में कितना बिलीव करते हैं आप लोग? भूषण जी, आपके पास सर, मैं रितेश हूँ और इस सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगा। खास वजह? सर, कल मैं मर के दोबारा जन्म ले रहा हूँ 600 साल बाद। सिद्धार्थ जी, पुनर्जन्म की बात करें, बिल्कुल एब्सोल्युटली, आई थिंक डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग चेंज। मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं आ रहा है, वैसे मर जाओ में ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हैं। जैसा कि हम कहा है, हम कल देखेंगे इनका जादू कि ये कैसे जन्म लेके वापस आते हैं हाउसफुल में। आप कब रिलीज होगी? कल हाउसफुल का ट्रेलर लॉन्च है, उसमें रितेश उसकी जिक्र कर रहे हैं। आज इस जन्म की बात करते हैं। आज का जन्म बहुत इम्पोर्टेंट है सर। आज हम आज के जन्म की बात। रितेश, मेरा सवाल आपसे, जिस तरह का किरदार आप निभा रहे हैं वो वाकई बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव है, हालांकि 90 के दशक की याद दिलाता है और कहीं जहन में कमल हसन साहब भी आते हैं। जब आप घुटनों के अंदर चल के आए, माइंड ऑफ कमल हसन साहब, देवगन अप्पू राजा, क्या कुछ इंस्पायर भी हुए हैं या आपने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं? स्पेशली मैं कमल हसन साहब की बात करूंगा, जिस तरह उस वक्त में जिस टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, उस वक्त वो किरदार निभाया गया था। और मिलन ने भी कहा कि आप नहीं बोलते थे कि यार ये क्या करवा रहा है भाई, लेकिन ही बिलीव इन द कैरेक्टर। तो क्या रेफरेंसेस लिए हैं आपने, और इट इज योर होमवर्क, यू नो? अब तो सबसे पहले मुझे लगता है कि कमल हसन साहब इज बियॉन्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हो या ना हो, हिज परफॉर्मेंस, हिज ग्रेटनेस इज बियॉन्ड ऑल दैट। और इट्स जब हम ये कर रहे थे, ऑफ कोर्स इतने सारे एक्टर्स हैं जिनको देखकर लगता है कि इन्होंने कैसा किया होगा, पर फॉर्चुनेटली मुझ में जो खामियां हैं एज एन एक्टर, वहाँ टेक्नोलॉजी आकर हेल्प कर देती है। एंड आई एम ग्लैड जिस तरह मिलाप डायरेक्ट किया है, और इसके जो VFX है, वाकई फ्यूचर स्टूडियोज़ हो या इसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया है, आई थिंक दे हैव रियली टेकन ग्रेट केयर एंड मेड इट एक्सट्रीमली ईजी फॉर मी एज एन एक्टर। मुझे सिर्फ एक शॉट 5 बार करना पड़ता था, उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई। और हमें शॉट बिना इनके करना पड़ता था, इमेजिन करते करते कि यहाँ पे इस आईलाइन में, और जब कभी-कभी एक्चुअल आईलाइन देखनी होती थी जब ये खड़े हुए हैं, ये हम लोग ऐसे शूट करते थे। नहीं सर, तो सर जब आप खड़े होते हैं और मेरी आईलाइन क्या होती है? सर नहीं, मैं मारूंगा, मर जाएगा। हाँ, और ये कैसा नहीं, और मेरी आईलाइन क्या थी? कमीनेपन की हाइट से जाता हेलो। तो ऐसे तो हमने परफॉर्म किए पिक्चर में, देखो इतनी भारी भरकम लाइनें कहाँ देख के बोल रहा था। कोई शूटिंग देखने आया था, वो डर गए थे कि ये कैसी पिक्चर है। I am reminded of Milap's earlier film. Please stop it. फिल्म में बहुत सारे लोग बहुत सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं, आप कब डायलॉग्स बोल रहे हो? तो इन द फिल्म वी गेट टू सी यू हैविंग भारी भरकम डायलॉग्स।
That's a great question, ma'am. So what really drew me to Marjava and to Zoya's character is the fact that she's actually mute. So in the film, I actually learned sign language for a couple of months before the film, and I feel really lucky to have been able to learn something as versatile as that. It helped me so much in the film, and I got so excited that I got to do something like that. It's something I'm actually going to use in my life wherever I travel and go to. But in film, she communicates in sign language, and I think that's wonderful communication between her character and Raghu's character. I think that's what makes them fall in love, and it's beautiful. So I can't wait for it. हेलो दिस इज साक्षी फ्रॉम E24। मेरा सवाल सिद्धार्थ से है। थोड़े टाइम पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि आप शायद अभी कोई और नई फिल्म साइन नहीं करेंगे, यू विल एनालाइज, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ भी एनालाइज नहीं किया इनके साथ, मैं सीधा कूद गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर कोई एक्टर सोचता है पिक्चर साइन करने से पहले कि उसको उस पिक्चर में क्या पसंद आता है, उसको पिक्चर से क्या चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस फिल्म में इट गिव्स एन होप टू ऑल द हीरोज, एंड आई हैव सीन यू नो इन हिंदी मूवीज, एंड आई गॉट इंस्पायर्ड कि क्या शॉट है, क्या एंट्री है, क्या वॉक है, क्या एक्शन है। तो वही एक्साइटमेंट से मैं इस पिक्चर में घुसा मिलाप के साथ, इस डायलॉग के साथ। And this team here has made sure that I've been presented in the best possible way. मेरा पहला association है भूषण सर के साथ, MA के साथ, and I've had a wonderful time with this whole team. And we're very excited that this is not the end, and then we have many more films. Hello, this is Surya here from Bollywood Crazies. My question to Milap sir is that सर ट्रेलर तो पैसा वसूल है, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ पे एक सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे रितेश सर एक कुर्सी पे खड़े हैं और सामने आईने पे 10 चेहरे दिखते हैं। That was a brilliant piece of cinema making. I mean, so सर ये सुनने के लिए मिलाप के कान तरस गए थे। उसके जिंदगी में किसी ने इसको नहीं कहा कि ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा मेकिंग। ये सुन के निकल गिर गया इसको। मैं Especially Trandamil, मैं टर्न करके जा रहा हूँ घर। there is also a dialogue called कमीनेपन की हद 3 फुट। तो ये सब चीजें, ये सब डायलॉग बाजी इतनी कमाल की लगती है, मतलब एक पैसा वसूल सिनेमा लग रहा है फिलहाल मुझे। और यहाँ पे मेरा बर्थडे भी आता है 8 नवंबर को, तो मैं तो देखने वाला हूँ कल। लेकिन आप लोग से सवाल कल नहीं बाबा, 8 नवंबर। तो मेरा ये सवाल है मिलाप सर से, इस तरह का जो सिनेमा है, जो मसाला सिनेमा, जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक को पसंद आएगा, कितना डिफिकल्ट होता है बनाने? सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपको इतना अच्छा लगा वो सीन, कि मुझे क्या है, दोबारा पूछना सवाल। तारीफ की आदत नहीं है, बिकॉज सबकी शिकायत होती है कि मेरा जो सिनेमा है वो बहुत ज्यादा मासी है और मसाला है और फिल्मी है। तो आई एम वेरी हैप्पी, आपको बहुत अच्छा, वो बहुत ही एवरीथिंग लुकिंग दैट साइड, नॉट दिस साइड। पर आपने जो बात कही है ऑनेस्टली, ये बात मुझे निखिल ने भी कुछ दिन पहले कही कि ये जो एक सेक्शन जो तूने आईना तोड़ के जो 10 रितेश के सर नजर आते एज अ सिंबोलिज्म ऑफ रावण, तो ही हिमसेल्फ टोल्ड मी दैट्स वन ऑफ द ओनली एस्थेटिक शॉट्स टू टेकन इन दिस होल फिल्म। एंड देन आई सेड वन मोर थिंग, व्हाट? क्लोज अप की नहीं ली। और उस सीन की खास बात थी कि मैं शॉट देने जा रहा था, मैं वहाँ रुका था और मैं कैमरा के सामने आया, कैमरा रोल हुआ और मिलाप ने कहा कट, दौड़ के आया मेरे पास, एक लाइन आई है, लाइन बोल दो। मैंने कौन सी? बोला लाइन बोल दे। आप बोलो। तो बोलता कि एक रावण 10 सर, एक विष्णु 10 का सर। हेलो मेरा नाम आरती सक्सेना है। आरती जी, मेरा रितेश जी से मेरा सवाल है कि मतलब ये कैरेक्टर लिए हम लोग जब आए ना, तो हम लोग लगा मर जाना मतलब होगी एक पिक्चर, लेकिन जब हम लोगों ने देखा सही है पिक्चर, ये सही बोला आपने, एक पिक्चर ये। हम लोग जैसे हमेशा एक ट्रेलर लॉन्च में आते हैं, तो हम लोग ऐसे नॉर्मली आते हैं, लेकिन देखने के बाद हम लोग झटके में आ गए। थैंक यू। जो इन्होंने लास्ट में गोली चलाई, आपके जो शॉट्स थे, तो मुझे ये पूछना था कि मतलब आपका जो विलन वाला रोल है, इसके लिए आप गाना गा रहे थे कि ये घड़ी आ गई, इतना अच्छा रोल मुझे मिल गया इतने टाइम के बाद, मतलब लाइक इसमें बहुत अच्छा आपका रोल है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मिलाप का और मेरा एसोसिएशन काफ़ी सालों से है। मेरे करियर में जब भी कोई बदलाव हुआ है तो मिलाप की लिखावट से हुआ है। पहले तो चाहे वो मेरी पहली कमर्शियल हिट फिल्म मस्ती थी जो मिलाप ने लिखी थी, जिंदगी में हम
हमेशा ये सोचता था कि कभी तो विलन बनूं, एक रोल होता है, हर तरह की ख्वाहिश होती है। वो एक विलन में मिलाप ने लिखा था और उसके बाद अभी वर्टिकली चैलेंज बनने का भी मौका बहुत कम लोगों के नसीब फॉर दैट। और लगे हाथों मैं ये भी कहना चाहूँगा, इट वाज ग्रेट एसोसिएटिंग विद एम.ए. मोनिशा, मधु एंड निखिल। दे हैव बीन great producers. इतने साल काम करने के बाद then you work with a new team, you feel re-energized, so that's there. And it's my first association as producer with Bhushan ji, and he has been a fantastic producer, and I wish him and all his endeavors all the best and much. का रोल हो सकता है इन फ्यूचर, लाइक आपको कोई विलन ध्यान में है जिसको देख के आपको लगा कि ऐसा मैं भी बन जाऊंगा? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मेरी वैसी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं उनकी तरह बनूं, क्योंकि जो भी मुझे विलन्स अच्छे लगे, दे हैव बीन फैंटास्टिक, दे हैव बीन ग्रेट। और आई एम नॉट दैट कैलिबर फॉर एन एक्टर टू रीच देयर, बट विद इन माई स्पेस इफ आई कैन क्रिएट समथिंग दैट पीपल से अरे इसने अच्छा काम किया है, मेरे लिए वही काफ़ी है। Hello, hi. This is Siddhi from Deccan Chronicle. Firstly, the trailer looks really amazing. My question is for you, Siddharth and Ritesh. After watching the trailer, I could really feel that I'm reminded of the characters Ram and Ravan. So, is Marjawa a contemporary take on Indian mythology? सवाल हमसे पूछा लेकिन जवाब से मिला भी दे सकते हैं। बिल्कुल, ये रघु और विष्णु के बीच। Just because आप लोग कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, so is it actually? ओह अच्छा, नहीं वो आई थिंक जब एक डायरेक्टर की तरफ से वो सोच आती है कि वो ऐसे किरदार को देख के इंस्पायर हुए हैं। मैं भी वही बात कर रहा था कि मैंने भी बच्चन साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ, चाहे वो बाकी एक्शन हीरोज हो 90s के, जहाँ पे मैं पला बड़ा था। तो हम सब के जहन में वो होते हैं कैरेक्टर, जब हम चाहे परफॉर्म कर रहे हो या लिख रहे हो या डायरेक्ट कर रहे हो। तो आई फील एक अच्छी बात है, बट हमारा ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है कि किसी और कैरेक्टर को एमुलेट करें, बट डेफिनेटली वो जोन लाइक वी हैव ग्रोन अप ऑन हीरोज लाइक हिम, एंड आज भी वो एक रेफरेंस है, चाहे हीरोज का एक्शन हो, उनका एक एटीट्यूड हो, एक स्टाइल हो। तो आई थिंक वो रेफरेंस अगर आपको उसमें दिख रहा है, हम बहुत ही एक्साइटेड हैं, बट होपफुली पीपल फील द सेम वे। रिमेंबर, हेलो भूषण सर, भूषण सर डेडिकेट, खैर मैं आई डोंट थिंक लगे कि वो थोड़ा 1% भी आसपास है, सो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। बट जैसे कि मैंने कहा, जब मिलाप ने मुझे बताया तो आई थॉट कि ऐसा किरदार मुझे दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा, बिकॉज ऐसा लिखा नहीं जाता आजकल, वेयर यू कैन प्ले दैट 90s ग्रेस और ये सब। और मैंने फिर जाकर वापस मूवी देखी जस्ट टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड वो फिल्मों की रेफरेंस दी थी मिलाप ने मुझे, बट या आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई गॉट टू प्ले इट। हेलो राहुल, take two last questions, right? Like हाँ, योर टर्न। राहुल हियर फ्रॉम द फिल्मी चर्चा। मेरा सवाल चारों स्टार कास्ट से पहले सिद्धार्थ से शुरू करते हैं। ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये आपकी सारी फिल्मों सबसे टॉप पे ये बेस्ट फिल्म बन जाएगी आपकी। और तो बात करते हैं, जब मरजावा फीलिंग तभी आती है जब कोई सिचुएशन होता है, ऐसा कुछ नौबत ऐसी आती है। एक तो सलमान सर ने किक में बताया था, मैंने यार ना मिले तो मर जावा। तो आपकी नज़र में आपकी कब कब ऐसे सिचुएशन आए थे मरजावा वाले? हाँ, कि मेरा अभी हुआ फैंस को देखता हूँ, हमेशा मुझे लगता है हाय मैं मर जाऊँ। इन सब का प्यार ऐसा है, जिस तरफ से ये लोग आते हैं हमेशा प्यार दिखाते हैं। अब कोई भी एक्टर जब मिलता है अपने फैन से, मैं इनसे पहले हुए था नीचे, तो यू ऑलवेज फील ब्लेस्ड। एंड जैसे हमारे नॉर्थ में बलाएं लेते हैं ऐसे हाय मैं मर जावा, और यहाँ पे मिलाप सर ने उसको ट्विस्ट दिया है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। बट वी आर होपिंग कि इस पिक्चर के बाद मर जावा के अलग अलग भी मीनिंग्स आएंगे जो चाहते हैं हमारे मिलाप सर। क्योंकि कुछ कमीने दोस्त भी होता है, अगर सीरियसली आपको बोल दे ठीक है मर जा तो ठीक है मर जा, क्या अगर कुछ कमीने दोस्त भी होते हैं, अगर आपने बोला हाय मर जावा, तो सामने से अगर रिप्लाई करे कमीने दोस्त हाँ ठीक है मर जा, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कहेंगे घर जाओ। मैं मारूंगा मर जाएगा। रितेश हेलो रितेश रवि सर, रितेश जैसे कि आप भी जानते हैं कि अगर कुछ सिमिलर चीजें होती, चाहे रोल हो, कैरेक्टर हो या सीन हो, तो लोग कंपैरिजन करने लगते हैं। तो उस लास्ट ईयर एक फिल्म आई थी जीरो, शाहरुख खान सर की फिल्म आई थी, तो वो फिल्म उतनी पसंद लोगों ने किया था, फिर भी उतनी चली नहीं थी। तो क्या कंपटीशन लगता है आपको, क्योंकि आप भी एक डॉग का किरदार कर रहे हैं? सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली मैंने फिल्म देखी नहीं है, पर
मैं जब शाहरुख साहब के सेट पे गया था तो मैंने अराउंड 45 मिनट्स उन्होंने मुझे बैठ कर दिखाया था कि वो किस तरह शूट करें, किस तरह उस कैरेक्टर को प्ले करें। तो लाइव मैंने उनको वो परफॉर्म करते हुए देखा था एंड ही वॉज मैग्निफिसेंट। आई थॉट व्हाट दे हैड डन वाज एक्स्ट्रॉर्डिनरी। और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तो उनके जैसा उनकी तरह नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने वो कोशिश ही करना छोड़ दिया। और मेरे लिमिटेशन में मुझे जितना आता है, जितना मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा उतना मैंने किया। अभी आप देखिए, आपको पसंद आया तो ग्रेट। रकुल, हमेशा आज भी आप बहुत बेहद खूबसूरत लग रहे हो आप। तो ये मर जावा फिल्म आपने क्या सोच के हाँ बोला, मतलब कुछ ऐसा लगा आपको क्योंकि छोटा सा किरदार है? सोचती तो हाँ नहीं बोलती। बस मिलाप ने थोड़े से डायलॉग सुना दिए और बस मैं उसमें मैंने हाँ कर दी। पर जैसे कि मैंने आपको कहा, बात लेंथ की नहीं होती, जैसे आपने कहा कि छोटा है, बात धमाके की होती है। कभी कभी छोटा भी धमाका दे जाता है। सो आई थिंक काफ़ी पावरफुल रोल है। एंड जैसा कि इन्होंने कहा मुकद्दर का सिकंदर, उसमें अभी तक आप रेखा जी के रोल की बात कर रहे हैं, इंद्रमुखी देवदास की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक मुझे ये रोल बहुत एक्साइट किया। अगेन मैं कह रही हूँ बिकॉज ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, बिकॉज ऑफ द वे आरजू का कैरेक्टर लिखा गया है, उसकी अदाएँ, उसकी शायरी, काफ़ी शायरी में बात करती है। वो जब आप आगे देखेंगे मूवी तो आपको पता चलेगा। सो फॉर मी इट वाज जस्ट गेटिंग अ चांस टू प्ले समथिंग व्हिच आई डोंट थिंक आई कुड हैव गॉटन अ चांस टू प्ले otherwise. रवि सर, भूषण सर, हाय, रवि फ्रॉम बीबीसी न्यूज। भूषण सर, टी सीरीज इस वक्त इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना रहा है, बॉलीवुड में जो 2-3 स्टूडियोज हैं उससे भी कई बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े सितारों के साथ काम कर रहे हैं आप। हाल ही में खबर आई थी कि वांगा रेड्डी जो कबीर सिंह जिन्होंने बनाई थी मॉन्स्टर फिल्म थी बहुत बड़ी, रणवीर सिंह अब काम करने जा रहे हैं वांगा रेड्डी के साथ। क्या कुछ इसके बारे में कंफर्मेशन दे सकते हैं, क्या कुछ बता सकते हैं? अभी वी आर डूइंग द फिल्म, लेकिन अभी कोई एक्टर फाइनल नहीं है। ही इज स्टिल राइटिंग द स्क्रिप्ट। तो जब रेडी हो जाएगी तो विल ऑफिशियली अनाउंस। अप्रोच किया गया सर? नहीं, अभी किसी को अप्रोच नहीं। ओके सर। Last question we're taking, Ji. Komal here from Indian Express. Ritesh, my question is for you. While you totally look into character in the trailer that we watched, why this question can be answered by the director and Nikhil, you also. When we write characters keeping maybe a dwarf in mind, why do we not have a dwarf actor do this? Because we always lack some kind of representation when it comes to dwarf actor or a fat actor or an old actor. When the characters are like this, why don't we get actors accordingly? Ma'am, I respect your viewpoint, but as an actor, when someone has approached me with a offer and a role, I think my job is only to see whether I will be able to pull it off, and if the director and the producer have the confidence that I will be able to pull it off and do justice to what's been offered to me. As an actor, I am ready to play anything, be it a vertically challenged person, old person, young person. I played a woman also. So हाँ सर, वो भी है। और बहुत सारे पिक्चरों में मेरी हालत कुत्ते जैसी भी हुई है। तो I have played everything. और so I'm as an actor I'm open, but as a writer and producer I'm sure Milap will answer that. Well, while I feel your question is valid, if Mr. Anupam Kher, who's such a great actor, had not played a character older than his years in Saransh so many years back, you never have had Anupam Kher ji. Similarly, there are so many great actors who play different roles. Ayushmann in Dreamgirl a few weeks back played, a person they all think he's a girl. So I just think that eventually, while I feel yes, everyone deserves a right and should get an opportunity, to act and to perform, it's also equally fair that actors get chances to experiment. For Ritesh to be able to play a dwarf, for someone else to be able to play someone older, it's or someone to be like, even Sand Ki Aankh trailer came out a few days back. I loved the trailer. I think it's superb the way Taapsee and Bhumi have done the parts, and I think it's great that actors are taking challenges and coming out of their comfort zone, and writers are writing, directors are agreeing, producers are agreeing to do such things. So I just guess it's a matter of who you think fits the role. I knew I needed someone like him because of the wickedness and the humor and the performance. That's why I approached him for it. Do
Yeah, my question is to. Gigi, please continue. Yeah, my question is to Monisha ma'am. The last two films. The last two films you produced and now Marjava. So what are the parameters which you have? Thank you so much, ma'am. And it's time for the final photo as we have to wrap up because the actors have to leave here. And I'm so sorry, guys. It's time for the final photo op. Would like to invite on stage Mr. Neeraj Kalyan, ladies and gentlemen. It won't have been possible without his support. T-Series, Senior VP Films, ladies and gentlemen. And thank you so much for being so cool, so patient. Thank you so much, guys. संजय ओ मिश्रा जी यार ओ मैं अरे यार फ्रेम गया हो गया एक मिनट कैमरा अरे बैठ जाओ बैठ जाओ ओ मिश्रा जी मिश्रा मोबाइल देखो भाई ओ मिश्रा जी मैडम मोबाइल हेलो मोबाइल चलो
थी है फिल्म करने के लिए? निखिल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज के ज़माने जहाँ प्रोफेशनलिज्म की हम बात करते हैं, what do you want to say about this gesture जहाँ पे John Abraham has just given the dates of 8 November and he has pushed his film Pagalpandi. What do you want to say about it? Well, I think that I think the partnership that John, myself, Bhushan ji, Amy, Jay, and TCD, as well as I mean we have to be very grateful for Milab. If Milab was not here, we would not have Satyam Jayate, we would not have Matla House and now Satyam Jayate too. So I think that I mean when Milab went and showed him the trailer, he said that it's fantastic. I think he spoke to everybody. He said it's great. And he said, but why is he feeling so upset? And he said, no, I'm not coming on. I'm not solo. He said, let's solo. What can I do? Because I think it's a great gesture. It's very, and more, I think that the industry is figuring, is understanding that we are working now more and more as a unit, which I'm very happy for. It's been 25 years in the industry. I've been very happy that suddenly everybody is figuring out that listen, Fridays we are giving hits and we are giving blockbusters. If we all come together and work together, the industry can become only prosper. So it's fantastic. I'm very grateful. And I think, thank you for asking that question. I just want to thank John. John, thank you so much for showing grace towards us. Thank you. Thank you, John. Thank you, John. रितेश जी एंड सिद्धार्थ जी आपके लेफ्ट में ये जानना चाहेंगे कि मरने के बाद दोबारा जन्म लेने में कितना बिलीव करते हैं आप लोग? भूषण जी आपके पास सर मैं रितेश हूँ और इस सवाल का जवाब मैं आपको कल दूंगा। कोई खास वजह? सर कल मैं मर के दोबारा जन्म ले रहा हूँ 600 साल बाद। सिद्धार्थ जी पुनर्जन्म की बात करें, बिल्कुल एब्सोल्युटली आई थिंक डेफिनेटली इट्स अ लॉन्ग चेन। मुझे इस कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं आ रहा है, वैसे मर जाओ में ऐसा कुछ नहीं दिखा रहे हम, जैसा कि हम कहा है हम कल देखेंगे इनका जादू कि ये कैसे जन्म लेके वापस आते हैं हाउसफुल में। आप भी करते हैं पुनर्जन्म? कब रिलीज हो? कल हाउसफुल का ट्रेलर लॉन्च है, उसमें रितेश उसकी जिक्र कर रहे हैं। आज सर आज इस जन्म की बात करते हैं। आज का जन्म बहुत इम्पोर्टेंट है सर। आज हम आज के जन्म की बात। रितेश, मेरा सवाल आपसे, जिस तरह का किरदार आप निभा रहे हैं वो वाकई बहुत चैलेंजिंग रहा होगा। ट्रेलर बहुत इंप्रेसिव है, हालांकि 90 के दशक की याद दिलाता है और कहीं जहन में कमल हसन साहब भी आते हैं जब आप घुटनों के अंदर चल के आए। माइंड ऑफ कमल हसन साहब, देवरन अप्पू राजा। क्या आप कुछ इंस्पायर भी हुए हैं आप, या आपने कुछ रेफरेंसेस लिए हैं? स्पेशली मैं कमल हसन साहब की बात करूंगा, जिस तरह उस वक्त में जिस टेक्नोलॉजी भी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी, उस वक्त वो किरदार निभाया गया था। और मिलन ने भी कहा कि आप कहीं बोलते थे कि यार ये क्या करवा रहा है भाई, लेकिन ही बिलीव इन द कैरेक्टर। तो क्या रेफरेंसेस लिए हैं आपने, और इट इज योर होमवर्क, यू नो? तो सबसे पहले मुझे लगता है कि कमल हसन साहब इज बियॉन्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी हो या ना हो, हिज परफॉर्मेंस, हिज ग्रेटनेस इज बियॉन्ड ऑल दैट। और इट्स जब हम ये कर रहे थे, ऑफ कोर्स यू नो इतने सारे एक्टर्स हैं जिनको देखकर लगता है कि इन्होंने कैसा किया होगा, पर फॉर्चुनेटली यू नो मुझ में जो खामियां है एज एन एक्टर, वहाँ टेक्नोलॉजी आकर हेल्प कर देती है। एंड आई एम ग्लैड जिस तरह मिलाप डायरेक्ट किया है, और इसके जो VFX है वाकई फ्यूचर स्टूडियोज़ हो या इसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया है, आई थिंक दे हैव रियली टेकन ग्रेट केयर एंड मेड इट एक्सट्रीमली ईजी फॉर मी एज एन एक्टर। मुझे सिर्फ एक शॉट 5 बार करना पड़ता था, उससे ज़्यादा तकलीफ नहीं है। और हमें शॉट बिना इनके करना पड़ता था, इमेजिन करते करते कि यहाँ पे इस आईलाइन में, और जब कभी कभी एक्चुअल आईलाइन देखनी होती थी जब ये खड़े हुए हैं, यू नो ये हम लोग ऐसे शूट करते थे। नहीं सर, तो सर जब आप खड़े होते हैं और मेरी आईलाइन क्या होती है सर? नहीं मैं मारूंगा मर जाएगा। हाँ, और ये कैसा नहीं और मेरी आईलाइन क्या थी? कमीनेपन की हाइट से जाता। हेलो, तो ऐसे तो हमने परफॉर्म किए पिक्चर में, देखो इतनी भारी भरकम लाइनें कहाँ देख के बोल रहा था। कोई शूटिंग देखने आया था, वो डर गए थे कि ये कैसी पिक्चर है। I'm reminded of Milap's earlier film. Please stop it. फिल्म में बहुत सारे लोग बहुत सारे डायलॉग्स बोल रहे हैं, आप कब डायलॉग्स बोल रहे हो? तो इन द फिल्म वी गेट टू सी यू हैविंग भारी भरकम डायलॉग्स। That's a great question, ma'am. So what really drew me to Marjava and to Zoya's character is the fact that
she's actually mute. So in the film, I actually learned sign language for a couple of months before the film, and I feel really lucky to have been able to learn something as versatile as that. It helped me so much in the film, and I got so excited that I got to do something like that. It's something I'm actually going to use in my life wherever I travel and go to. But in film, she communicates in sign language, and I think that's wonderful communication between her character and Raghu's character. I think that's what makes them fall in love, and it's beautiful. So I can't wait for it. हेलो दिस इज साक्षी फ्रॉम E24। मेरा सवाल सिद्धार्थ से है। थोड़े टाइम पहले ऐसी खबरें आ रही थी कि आप शायद अभी कोई और नई फिल्म साइन नहीं करेंगे, यू विल एनालाइज, तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल नहीं, मैंने यहाँ पे कुछ भी एनालाइज नहीं किया इनके साथ। मैं सीधा कूद गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हर कोई एक्टर सोचता है पिक्चर साइन करने से पहले कि उसको उस पिक्चर में क्या पसंद आता है, उसको उस पिक्चर से क्या चाहिए। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस फिल्म में it gives an oath to all the heroes, and I have seen in Hindi movies, and I got inspired कि क्या शॉट है, क्या एंट्री है, क्या वॉक है, क्या एक्शन है। तो वही एक्साइटमेंट से मैं इस पिक्चर में घुसा मिलाप के साथ, इस डायलॉग के साथ। And this team here has made sure that I've been presented in the best possible way. मेरा पहला एसोसिएशन है भूषण सर के साथ, MA के साथ, and I've had a wonderful time with this whole team. And we're very excited that this is not the end, and then we will have many more films. Hello, this is Surya here from Bollywood Crazy. My question to Milap sir is that sir, ट्रेलर तो पैसा वसूल है, पहली बात तो। दूसरी बात, यहाँ पे एक सीन था जो मुझे बहुत अच्छा लगा, जहाँ पे रितेश सर एक कुर्सी फेंकते हैं और सामने आईने पे 10 चेहरे दिखते हैं। वो से ब्रिलियंट सब सिनेमा में। सर, ये सुनने के लिए मिलाप के कान तरस गए थे। उसके जिंदगी में किसी ने इसको नहीं कहा कि ब्रिलियंट पीस ऑफ सिनेमा। सर, ये सुन के निकल गिर गया इसको। मैं पसंद Especially in front of me. मैं टर्न करके जा रहा हूँ घर। There is also a dialogue called कमीनेपन की हद 3 फुट। तो ये सब चीजें, ये सब डायलॉग बाजी इतनी कमाल की लगती है, मतलब एक पैसा वसूल सिनेमा लग रहा है फिलहाल मुझे। और यहाँ पे मेरा बर्थडे भी आता है 8 नवंबर को, तो मैं तो देखने वाला हूँ कल। लेकिन आप लोग से सवाल कल नहीं बाबा, 8 नवंबर। तो मेरा ये सवाल है मिलाप सर से, इस तरह का जो सिनेमा है, जो मसाला सिनेमा, जो बच्चों से लेकर बूढ़े तक को पसंद आएगा, कितना डिफिकल्ट होता है बनाना? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपको इतना अच्छा लगा वो सीन, कि मुझे क्या है, दोबारा पूछना सवाल। तारीफ की आदत नहीं है, बिकॉज सबकी शिकायत होती है कि मेरा जो सिनेमा है वो बहुत ज्यादा मासी है और मसाला है और फिल्मी है। तो आई एम वेरी हैप्पी, आपको बहुत अच्छा, वो बहुत ही एवरीथिंग लुकिंग दैट साइड, नॉट दिस साइड। पर आपने जो बात कही है, ऑनेस्टली ये बात मुझे निखिल ने भी कुछ दिन पहले कही कि ये जो एक सेक्शन जो तूने आईना तोड़ के जो 10 रितेश के सर नजर आते एज अ सिंबोलिज्म ऑफ रावण, तो he himself told me that's one of the only aesthetic shots to take in this whole film. So, and then I said one more thing. What? Close out क्यों नहीं ली? और उस सीन की खास बात थी कि मैं शॉट देने जा रहा था, मैं वहाँ रुका था और मैं कैमरा के सामने आया, कैमरा रोल हुआ और मिलाप ने कहा कट, दौड़ के आया मेरे पास, एक लाइन आई है, लाइन बोल दो। मैंने कौन सी? बोला लाइन बोल दे। आप बोलो। तो बोलता कि एक रावण 10 सर, एक विष्णु 10 का असर। हेलो मेरा नाम आरती सक्सेना है। आरती जी, मेरा रितेश जी से मेरा सवाल है कि मतलब ये कैरेक्टर, ये हम लोग जब आए ना तो हम लोग लगा मर जाना, मतलब होगी एक पिक्चर, लेकिन जब हम लोगों ने देखा, हाँ सही है, पिक्चर ही है, सही बोला आपने, एक पिक्चर ही है। हम लोग जैसे हमेशा एक ट्रेलर लॉन्च में आते हैं, तो हम लोग ऐसे नॉर्मली आते हैं, लेकिन देखने के बाद हम लोग झटके में आ गए। थैंक यू। जो इन्होंने लास्ट में गोली चलाई, आपके जो शॉट्स थे, तो मुझे ये पूछना था कि मतलब आपका जो विलन वाला रोल है, इसके लिए आप गाना गा रहे थे कि ये घड़ी आ गई, इतना अच्छा रोल मुझे मिल गया इतने टाइम के बाद, मतलब लाइक इसमें बहुत अच्छा आपका रोल है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मिलाप का और मेरा एसोसिएशन काफ़ी सालों से है। मेरे करियर में जब भी कोई बदलाव हुआ है तो मिलाप की लिखावट से हुआ है। पहले चाहे वो मेरी पहली कमर्शियल हिट फिल्म बस्ती थी जो मिलाप ने लिखी थी। जिंदगी में हमेशा ये सोचता था कि कभी तो विलन बनूं, एक रोल होता है, हर तरह की ख्वाहिश होती है, वो एक विलन में मिलाप ने लिखा था।
और उसके बाद अभी वर्टिकली चैलेंज बनने का भी मौका बहुत कम लोगों के नसीब फॉर दैट। और लगे हाथों मैं ये भी कहना चाहूँगा, इट वाज ग्रेट एसोसिएटिंग विद एम.ए. मोनिशा, मधु एंड निखिल। दे हैव बीन great producers. इतने साल काम करने के बाद then you work with a new team, you feel re-energized, so that's there. And it's my first association as producer with Bhushan ji, and he has been a fantastic producer, and I wish him and all his endeavors all the best and much. का रोल हो सकता है इन फ्यूचर, लाइक आपको कोई विलन ध्यान में है जिसको देख के आपको लगा कि ऐसा मैं भी बन जाऊंगा? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, मेरी वैसी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं उनकी तरह बनूं, क्योंकि जो भी मुझे विलन्स अच्छे लगे, दे हैव बीन फैंटास्टिक, दे हैव बीन ग्रेट, और आई एम नॉट दैट कैलिबर फॉर एन एक्टर टू रीच देयर, बट विद इन माई स्पेस इफ आई कैन क्रिएट समथिंग दैट पीपल से अरे इसने अच्छा काम किया है, मेरे लिए वही काफ़ी है। Hello, hi. This is Siddhi from Deccan Chronicle. Firstly, the trailer looks really amazing. My question is for you, Siddharth and Ritesh. After watching the trailer, I could really feel that I'm reminded of the characters Ram and Ravan. So, is Marjava a contemporary take on Indian mythology? सवाल हमसे पूछा लेकिन जवाब सिर्फ मिला भी दे सकते हैं। बिल्कुल, ये रघु और विष्णु के बीच। Just because आप लोग कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, so is it actually a take on Indian mythology even after seeing the? Well, if you talk about two different extremes, definitely there is a take on one being skewed to slightly positive, one being skewed to a slightly more negative character. But ये सब आप रेफरेंस की बात कर रहे हैं, I think क्योंकि रावण है यहाँ पे, और वो उन्होंने जो लिखा है, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है पिक्चर में, रावण को लेकर एक जो कल्चर है, एक प्रथा है जो होती है, उनकी भारी भरकम डायलॉग्स भी हैं उसके ऊपर। So I think more than us saying anything else about the film, I think it will speak for itself. और बाकी ये बताएंगे कि आपने आप रामायण से इंस्पायर हुए? Well, मेरा मानना है जिंदगी, हर किसी की जिंदगी में कोई राम है, कोई रावण है. There is good and evil in everyone. So in this film, that is a subtext of good versus evil. Raghu, his name in the film actually is one of the names of Lord Ram. So it has happened organically. It's not a mythological tale. The film is not that. The film is not a mythological tale. It is a masala entertainer. But yes, there is this subtext of good or evil. Dasera plays an important part in the film. Ravan plays an important part in the film. No, I just want to agree to what Milap and Siddharth just said. Just a man fight even Lord Ram did, and that's what Raghu is doing. आपने जिक्र किया कि जब हम किरदारों की बात करते हैं, 90s का पूरा हम सबको फील हो रहे हैं, नवदुर्गा भी आ रहा है कि इस तरह की डायलॉग बाजी, इस तरह का एक्शन हुआ था। सदी के माना का बच्चे ने कई फिल्में की प्रकाश जी के साथ, तो का फिल्म का आपने जिक्र किया और आपने कहीं रेफरेंस दिया सर, मैंने बच्चन साहब की सारी फिल्में देखी हैं और कई बार देखी है, आज भी देखता हूँ, बार बार देखता हूँ। और मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि यस, जब मैंने पहली बार, बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं हमारे जो इकट्ठा नहीं है, जो अलग सिद्धार्थ के साथ शूट हुए, अलग मेरे साथ शूट हुए, बहुत सारे सीन्स जो हमने एक साथ किए। पर जब मैंने उनके पोर्शन देखे तो जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जो डायलॉग डिलीवरी थी, आई मीन आई जस्ट फेल्ट कि जो 80s या 70s में अब अमित जी की जो बॉडी लैंग्वेज थी उससे काफ़ी मिलती जुलती इनका डीप बैरिटोन है, वो एटीट्यूड है। तो आप जिस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं, ऑफ कोर्स दैट इज देयर एज एन ऑडियंस। सो स्वीट, थैंक यू। जी सर, आपका सवाल क्या था? जैसे रितेश ने कहा कि कहीं उन्हें आपके बच्चे नजर आते हैं। ओह अच्छा, नहीं वो आई थिंक जब एक डायरेक्टर की तरफ से वो सोच आती है कि वो ऐसे किरदार को देख के इंस्पायर हुए हैं। मैं भी वही बात कर रहा था कि मैंने भी बच्चन साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, चाहे वो बाकी एक्शन हीरोज़ हो 90s के, जहाँ पे मैं बड़ा था। तो हम सब के जहन में वो होते हैं कैरेक्टर, जब हम चाहे परफॉर्म कर रहे हो या लिख रहे हो या डायरेक्ट कर रहे हो। तो आई फील एक अच्छी बात है, बट हमारा ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं है कि किसी और कैरेक्टर को एमुलेट करें। बट डेफिनेटली वो जोन, लाइक वी हैव ग्रोन अप ऑन हीरोज़ लाइक हिम, एंड आज भी वो एक रेफरेंस है, चाहे हीरोज़ का एक्शन हो, उनका एक एटीट्यूड हो, एक स्टाइल हो। तो आई थिंक वो रेफरेंस अगर आपको उसमें दिख रहा है, हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। बट
hopefully people feel the same way in November. Hello, Bhushan sir. थोड़ा 1% भी आसपास है, so that will be a great achievement for me. But जैसे कि मैंने कहा, जब मिलाप ने मुझे बताया तो I thought कि ऐसा किरदार मुझे दोबारा करने का मौका नहीं मिलेगा, because ऐसा लिखा नहीं जाता आजकल, you know, where you can play that 90s grace और ये सब. और मैंने फिर जाकर वापस मूवी देखी just to kind of understand what फिल्मों की reference दी थी मिलाप ने मुझे. But yeah, I'm just happy that I got to play it. Hello, Rahul. Take two last questions, Hello. right? Like राहुल here from the फिल्मी चर्चा. मेरा सवाल चारों स्टार कास्ट से पहले सिद्धार्थ से शुरू करते हैं. ट्रेलर बहुत ही अच्छा है और इतना कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि ये आपकी सारी फिल्मों सबसे टॉप पे बेस्ट फिल्म बन जाएगी आपकी. और तो बात करते हैं, जब मरजावा फीलिंग तभी आती है जब कोई सिचुएशन होता है, ऐसा कुछ नौबत ऐसी आती है. एक तो सलमान सर ने किक में बताया था, मैंने याद ना मिले तो मरजावा. तो आपकी नजर में आपकी कब कब ऐसे सिचुएशन आए थे मरजावा वाले? हाँ कि मेरा अभी हुआ फैंस को देखता हूँ, हमेशा मेरे को लगता है हाय मैं मर जाऊँ. इन सब का प्यार ऐसा है, जिस तरफ से ये लोग आते हैं हमेशा प्यार दिखाते हैं. आप कोई भी एक्टर जब मिलता है अपने फैंस से, मैंने से पहले हुए ना नीचे, तो यू ऑलवेज फील ब्लेस्ड. एंड जैसे हमारे नॉर्थ में बलाएं लेते हैं ऐसे हाय मैं मर जाऊँ, और यहाँ पे मिलाप सर ने उसको ट्विस्ट दिया है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा. बट वी आर होपिंग कि इस पिक्चर के बाद मरजावा के अलग अलग भी मीनिंग्स आएंगे जो चाहते हैं हमारे मिलाप से. क्योंकि कुछ कमीने दोस्त भी होता है, अगर सीरियसली आपको बोल दे ठीक है मर जा तो ठीक है मर जा क्या? अगर कुछ कमीने दोस्त भी होते हैं, अगर आपने बोला हाय मर जावा, हाँ. तो सामने से अगर रिप्लाई करे कमीने दोस्त हाँ ठीक है मर जा, तो इस सिचुएशन में आप क्या करोगे? कहेंगे घर जाओ. मैं मारूंगा मर जाएगा. रितेश हेलो रितेश रवि सर, वेलकम टू यू. एक सेकंड जी. रितेश, जैसे कि आप भी जानते हैं कि अगर कुछ सिमिलर चीजें होती, चाहे रोल हो, कैरेक्टर हो या सीन हो, तो लोग कंपैरिजन करने लगते हैं. तो कुछ लास्ट ईयर एक फिल्म आई थी जीरो, शाहरुख खान सर की फिल्म आई थी, तो वो फिल्म उतनी पसंद लोगों ने किया था, फिर भी उतनी चली नहीं थी. तो क्या कंपटीशन लगता है आपको, क्योंकि आप भी एक डॉफ का किरदार कर रहे हैं? सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली मैंने फिल्म देखी नहीं है, पर मैं जब शाहरुख साहब के सेट पे गया था तो मैंने अराउंड 45 मिनट्स उन्होंने मुझे बैठ कर दिखाया था कि वो किस तरह शूट करें, किस तरह उस कैरेक्टर को प्ले करें. तो लाइव मैंने उनको वो परफॉर्म करते हुए देखा था, एंड ही वॉज मैग्निफिसेंट. आई थॉट व्हाट दे हैव डन वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ तो उनके जैसा, उनकी तरह नहीं कर पाऊँगा, तो मैंने वो कोशिश ही करना छोड़ दिया. और मेरे लिमिटेशन में मुझे जितना आता है, जितना मुझे मेरे डायरेक्टर ने कहा, उतना मैंने किया. अभी आप देखिए, आपको पसंद आया तो ग्रेट. रकुल, हमेशा आज भी आप बहुत बेहद खूबसूरत लग रहे हो आप. तो ये मरजावा फिल्म आपने क्या सोच के हाँ बोला, मतलब कुछ ऐसा लगा आपको क्योंकि छोटा सा किरदार है? सोचती तो हाँ नहीं बोलती. बस मिलाप ने थोड़े से डायलॉग सुना दिए और बस मैं उसमें मैंने हाँ कर दी. पर जैसे कि मैंने आपको कहा, बात लेंथ की नहीं होती, जैसे आपने कहा कि छोटा है, बात धमाके की होती है. कभी कभी छोटा भी धमाका दे जाता है. सो आई थिंक काफ़ी पावरफुल रोल है. एंड जैसा कि इन्होंने कहा मुकद्दर का सिकंदर, उसमें अभी तक आप रेखा जी के रोल की बात कर रहे हैं, इंद्रमुखी देवदास की बात कर रहे हैं. तो आई थिंक मुझे ये रोल बहुत एक्साइट किया. अगेन जैसे मैं कह रही हूँ, बिकॉज ऑफ द कैरेक्टराइजेशन, बिकॉज ऑफ द वे आरजू का कैरेक्टर लिखा गया है, उसकी अदाएँ, उसकी शायरी, काफ़ी शायरी में बात करती है. वो जब आप आगे देखेंगे मूवी तो आपको पता चलेगा. सो फॉर मी इट वाज जस्ट गेटिंग अ चांस टू प्ले समथिंग व्हिच आई डोंट थिंक आई कुड हैव गॉटन अ चांस टू प्ले अदरवाइज. रवि सर. भूषण सर, हाय, रवि फ्रॉम बेबी न्यूज़. भूषण सर, टी सीरीज इस वक्त इतनी बड़ी बड़ी फिल्में बना रहा है, वो बॉलीवुड में जो 2-3 स्टूडियोज हैं उससे भी कहीं बड़ी बड़ी फिल्में और बड़े बड़े सितारों के साथ काम कर रहे हैं आप. हाल ही में खबर आई थी कि वांगा रेड्डी जो कबीर सिंह जिन्होंने बनाई थी मॉन्स्टर, हिट फिल्म थी बहुत बड़ी. रणवीर सिंह अब काम करने जा रहे हैं वांगा रेड्डी के साथ. क्या कुछ इसके बारे में कंफर्मेशन दे सकते हैं, क्या कुछ बता सकते हैं? अभी वी आर डूइंग द फिल्म, लेकिन अभी कोई एक्टर फाइनल नहीं है. ही इज स्टिल राइटिंग द स्क्रिप्ट. तो जब रेडी हो जाएगी तो विल ऑफिशियली अप्रोच किया है सर? नहीं, अभी किसी को अप्रोच नहीं किया. Last question we're taking, Ji. Komal from Indian Express. Ritesh, my question is for you. You know, while you totally look into character in the trailer that we watched, why this question can be answered by the director and you also. When we write characters keeping maybe a dwarf in mind,
why do we not have a dwarf actor do this? Because we always lack some kind of representation when it comes to a dwarf actor or a fat actor or an old actor. When the characters are like this, why don't we get actors accordingly? Ma'am, I respect your viewpoint, but as an actor, when someone has approached me with a offer and a role, I think my job is only to see whether I will be able to pull it off, and if the director and the producer have the confidence that I will be able to pull it off and do justice to what's been offered to me. As an actor, I am ready to play anything, be it a vertically challenged person. And it's time for the final photo as we have to wrap up because the actors have to leave here. And I'm so sorry, guys. It's time for the final photo op. Would like to invite on stage Mr. Neeraj Kalyan, ladies and gentlemen. It won't have been possible without his support. T-Series, Senior VP Films, ladies and gentlemen. And thank you so much for being so cool, so patient. Thank you so much, guys. संजय ओ मिश्रा जी मैं अरे यार अरे ड्रीम गया हो गया एक मिनट कैमरा अरे भाई बैठ जाओ ओ मिश्रा जी मिश्रा मोबाइल देखो भाई ओ मिश्रा जी
मैडम मैडम मोबाइल हेलो मोबाइल चलो हो गया चलो यार चलो यार वायर भाई थैंक यू यार निकाल थोड़े बाद निकालना पड़ा अरे सबका वायर निकाल दो बाहर निकाल दो बाहर निकाल दो